خبروں کی تفصیلات میں یہاں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا اچرا بازار کو اپلفٹ اور ریماڈل کرنے کا منصوبہ، بازار کو خوبصورت اور جاذب نظر بنایا جائے گا۔ منصوبے پر 66 کروڑ سے زائد کی لاگت آئے گی۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کی اچرا بازار ریماڈلنگ اسکیم منظور کر لی۔ ایل ڈی اے اچرا بازار کو فیروز پور روڈ سے آخر تک خوبصورت بنائے گا۔ مین فیروز پور روڈ پر انٹری کے لیے 30 فٹ اونچا اسٹیٹ آف دی آرٹ گیٹ بنایا گا۔ چیف انجینئر 2 ایل ڈی اے مظہر حسین خان کا کہنا ہے کہ اچرا بازار کو ریونیو ریکارڈ کے مطابق رائٹ آف وے کو کلیئر کیا جائے گا۔ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ یہ جو پرانے علاقے ہیں، جو پہلے اگنورڈ ہیں، جن پہ پہلے کوئی اس قسم کی توجہ نہیں ہے، ان تمام کو ریویمپ کر کے، ان کی ریویٹلائزیشن کر کے اور ان کو اپ گریڈ کیا جائے، اپ اسکیل کیا جائے، ود دی جو نیو مارکیٹس ہیں ان کی بالکل پیرالل لا کے کھڑا کیا جائے۔ اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہوئے اچرا بازار کی ریویمپنگ کا ٹاسک جو ہے نا وہ تھرو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایل ڈی اے کو جو ہے نا وہ اسائن کیا گیا ہے۔ چیف انجینئر 2 ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ پورے مین بازار کی بلڈنگ کے فساد کو خوشنما بنایا جائے گا۔ چیف انجینئر 2 ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ فرش پر ٹائل ورک، بلڈنگ فرنٹ پر ٹائلز اور اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ جو مین بازار اچرا بازار ہے تقریباً 500 میٹر کی لینتھ میں، مین بازار کی ریویمپنگ ہمارا اوریجنل جو انیشل سکوپ ہے اس میں، پلس مین فیروز پور روڈ پہ ہم 300 فٹ کی لینتھ میں مین گیٹ بھی بنا رہے ہیں، اینٹی گیٹ بڑا ایک مانومنٹل ہوگا انشاءاللہ، اور 300 فٹ مین فیروز پور روڈ پہ ہم جو ہے اس کی ریویمپنگ بھی ہمارے اسکوپ کا پارٹ ہے۔ اچرا بازار ریماڈلنگ کے بعد کسی پوش علاقے کے بازار سے کسی صورت کم نہ ہوگا، جبکہ منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کی آنرشپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جبکہ ایگزیکیوشن ایل ڈی کے ذمہ ہوگی۔ اچرا بازار میں رات کو دکانوں اور گوداموں کے مال برداری کے لیے صرف ٹریفک کو آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ دن بھر بازار ٹریفک فری زون ہوگا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ درین نایاب، سٹی 42۔ غیر قانونی تعمیرات کاروبار کو تحفظ دینے کا پلان، گلی گلی موجود بیوٹی پارلر اور ہاسٹل ریگولرائز کیے جائیں گے۔ ایل ڈی نے قانونی اجازت دینے کا پروپوزل کابینہ کو ارسال کر دیا۔ لینڈ یوزر رولز میں ترامیم کرا کے پارلرز اور ہاسٹلز بنانے کا نیا راستہ کھولنے کی اجازت مانگی۔ ایل ڈی اے نے غیر قانونی تعمیرات اور کاروبار کو ریگولر کروانے کا نیا منصوبہ بنا لیا۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے غیر قانونی تعمیرات اور کاروبار پر پردہ ڈالنے کے لیے قانون میں ترامیم کا سہارا لے لیا ہے۔ ایل ڈی اے نے کنٹرولڈ ایریاز میں بیوٹی پارلر اور ہاسٹلز کو قانونی اجازت دینے کا پروپوزل کابینہ کو ارسال کر دیا۔ ایل ڈی اے نے لینڈ یوز رولز میں ترامیم کرا کے پارلرز اور ہاسٹل بنانے کا نیا راستہ کھولنے کی اجازت مانگی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں مجوزہ ایجنڈے پر بحث ہوئی، جس پر کچھ ممبران نے ترامیم نہ کرنے پر سٹینڈ لیا۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے گلبرگ، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، رائیونڈ سمیت درجنوں علاقوں میں خلاف ضابطہ پارلرز اور ہاسٹل کھلوا رکھے ہیں۔ حتمی فیصلہ کابینہ کے فیصلوں کے منٹس آف میٹنگ میں سامنے آئے گا۔ ذرائع کے مطابق ایجنڈا فارورڈ کرنے پر ڈی جی ایل ڈی اے نے تحفظات کا اظہار کیا، تاہم پھر کابینہ کو موو کر دیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کی مالی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ مالی سال 2025 سے 26 میں 107 ارب کی قلت کا خدشہ ہے۔ صوبے کے مجموعی ریونیو ہدف 828 ارب کے مقابلے میں 720 ارب رہنے کا امکان ہے۔ ٹیکس ریونیو میں 77 ارب، نان ٹیکس آمدن میں 30 ارب کمی کا خدشہ ہے۔ ریونیو اتھارٹی کا ہدف 340 ارب سے کم ہو کر 323 ارب رہنے کا امکان۔ سیلز ٹیکس وصولیوں میں 17 ارب روپے کی کمی متوقع ہے۔ پنجاب حکومت کی مالی مشکلات بڑھ گئیں۔ مالی سال 2025-26 میں 107 ارب روپے کے مالیاتی شارٹ فال کا سامنا متوقع۔ صوبے کا مجموعی ریونیو ہدف 828 ارب روپے کے مقابلے میں صرف 720 ارب روپے رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ٹیکس ریونیو میں 77 ارب روپے اور نان ٹیکس آمدن میں 30 ارب روپے کی کمی کا خدشہ ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی وصولیاں 340 ارب کی بجائے 323 ارب روپے تک محدود رہنے کا امکان ہے، جبکہ سیلز ٹیکس سے بھی 17 ارب روپے کی کمی متوقع ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دی گئی ہے، جس کی وصولی 105 ارب کے مقابلے میں صرف 59 ارب روپے تک محدود رہنے کا اندازہ ہے۔ سٹامپ ڈیوٹی کی آمدن میں 32 ارب روپے اور زمینوں کی رجسٹریشن اور لینڈ ریونیو سے 7 ارب روپے کی کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح ایکسائز اور پراپرٹی ٹیکس میں معمولی کمی اور نان ٹیکس ریونیو میں 30 ارب روپے کی کمی متوقع ہے۔ سویگیز کمپنی کا گھریلو میٹرز لگانے کا آغاز، میٹر نصب کرنے کے احکامات، اضافی ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے والوں کی ابتدائی فہرست جاری۔ صارفین نے لیٹر کی بنیاد پر کمپنی کے ساتھ ایل این جی کا معاہدہ کیا۔ صارفین کو ایل این جی پر معاہدے کے لیے لیٹر بھجوائے تھے۔
श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी ने LNG की बुनियाद पर सार्फिन के मीटर्स नस्ब करने का आगाज कर दिया। कंपनी के साथ मुआहदे करके इजाफी रिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन की फहरिस्त जारी कर दी गई। श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी के हेडक्वार्टर से रीजनल दफातर को फहरिस्त अरसाल कर दी गई। हतमी फहरिस्त के मुताबिक सार्फिन के मीटर्स नस्ब करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सार्फिन को LNG पर मुआहदे के लिए लेटर भिजवाए थे। सार्फिन ने लेटर की बुनियाद पर कंपनी के साथ LNG का मुआहदा किया, जिसके बाद सार्फिन को जमा डिमांड नोटिस पर इजाफी कीमत का वोचर दिया गया। इजाफी कीमत की अदायगी होने पर कंपनी ने सार्फिन के लिए लगाने की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब मीटर्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। चीनी का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं है, पाउडर जैसी खाने के काबिल नहीं। दुकानदारों ने पाउडर जैसी चीनी को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। पैकिंग वाली चीनी 220 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। दुकानों पर आटे की तरसील में भी ताखीर जो है मामूल बन चुकी है। शहरी पैकिंग वाला महंगा आटा खरीदने से परेशान हो गए। शहर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। करियाना फरोशों की अक्सरियत के पास या तो चीनी मौजूद नहीं और अगर कहीं मौजूद है तो पाउडर जैसी बारीक चीनी है। दुकानदारों ने पाउडर जैसी चीनी को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। करियाना फरोश कहते हैं कि चीनी या तो मिलती नहीं, पाउडर जैसे भी मिले तो खाने के काबिल नहीं। मेयार है वो उस लेवल का नहीं है, जैसे कि कह लें कि बारीक है, पाउडर है, मिक्स कह लें। प्रॉपर चीनी जिस तरह के पहले हमें सप्लाई मिल रही थी, आ रही थी, कस्टमर की डिमांड अच्छी थी, बहुत तारीफ थी कि चीनी मोटी है, दाना सही है उसका, मगर अब उस लिहाज से नहीं आ रही, ज्यादातर पाउडर और बारीक चीनी है। दूसरी जानिब पैकिंग वाली चीनी 220 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों के मुताबिक जिले हुकाम चीनी सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोरों को दे रहे हैं, करियाना दुकानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ हमको बताएं कि बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इन्वेस्टिगेशन टीम तीफी बट को लेकर लाहौर पहुंच गई है। पुलिस बालाज कत्ल केस में मुलजिम से तहकीकात करेगी। तीफी बट ने दुबई की अदालत में पाकिस्तान जाने और मुकदमा का सामना करने का कहा था। बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस तीफी बट को कराची से लाहौर लेकर पहुंच गई। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तीफी बट को दुबई अदालत में पेश किया गया। काजी ने तीफी बट से पाकिस्तान जाने से मुतालिक सवाल किया। तीफी बट ने पाकिस्तान जाने और मुकदमा का सामना करने का कहा। ज़राए का कहना है कि दुबई अदालत ने तीफी बट को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बालाज कत्ल केस की तीफी बट से तहकीकात करेगी। सूबाई वज़ीर बराए मेहनत फैसल अयूब खोकर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ है। नए और जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में बताया गया कि फैसलाबाद में 1200 फ्लैट्स की तामीर का मंसूबा जारी है। कसूर में 500 फ्लैट्स पर मुश्तमिल नई लेबर कॉलोनी कायम की जाएगी। डिफेंस रोड लाहौर पर जदीद लेबर कॉम्प्लेक्स के कयाम की पेशरफ्त पर भी सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 300 मिलियन रुपए से वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स को मॉडल स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। पहले मरहले में 25 स्कूल्स में जदीद IT लैब्स कायम की जा रही हैं। दूसरे मरहले में बाकी स्कूल्स में भी IT लैब्स लगाई जाएंगी। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने इजाफी ब्लॉक्स की तामीर का अमल भी जारी है। सूबाई वज़ीर को बताया गया कि बायोमेट्रिक पोर्टल और HR मैनेजमेंट सिस्टम का कयाम अमल में लाया जा रहा है। 22 स्कूल्स में 144 STI टीचर्स की भर्ती मुकम्मल हो चुकी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा कि असासा और अमले की कमी जल्द पूरी की जाएगी। बच्चों की तालीम किसी सूरत मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने हिदायत की कि वेलफेयर स्कूल बसों में नस्ब कैमरों की क्वालिटी बेहतरीन हो। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से नए भर्ती होने वाले असिस्टेंट्स की मुलाकात हुई है। सूबे भर से पंजाब पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाले 51 असिस्टेंट्स शामिल। IG के नए भर्ती होने वाले असिस्टेंट्स को पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद भी दी गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया, IG पंजाब का कहना था कि पेशावराना अमूर की बेहतरीन अंजामदही के लिए अपनी तालीम और सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें। मेहनती, काबिल और तजुर्बाकार ऑफिस स्टाफ महकमे के सतून का दर्जा रखते हैं। भरपूर मेहनत और जोशो जज्बे से फराइज अदा करते हुए करियर में तरक्की के मनासिल तय करें। नए असिस्टेंट्स की महकमे में शमूलियत से खाली असामियां पुर हो जाएंगी। गढ़ी शाहू में स्कूल वेलनेस और NMP ऑप्टिक्स के इश्तराक से एनकू की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया गया। ब्रांच में हर ब्रांड की सनग्लासेस की वसी वैरायटी दस्तयाब है।
ब्रांच में नामवर ब्रांड्स की सनग्लासेस, नजर की ऐनकें, कलर लेंस, ट्रांसपेरेंट लेंस, मेडिकल लेंस, ऐनकों के फ्रेम और लेंस क्लीनर दस्तयाब हैं। तमाम ऐनकें 500 रुपए से लेकर 6000 की रेंज और मयारी क्वालिटी में दस्तयाब हैं। ब्रांच मैनेजर मोहम्मद उमैर और सेल्समैन तारिक महमूद ने बताया कि अद्वियात के शोबे में कामयाबी के बाद अब ऑप्टिक्स में कदम रखा है। हमने मेडिसिन के बिजनेस के बाद हमने ये ऑप्टिक का वो बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये हमारे पास जो है सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, कलर लेंस और फ्रेम वगैरह मार्केट से कम प्राइस में है। जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस की वैरायटी है वो इंशाल्लाह बड़ी मुनासिब कीमत पर है। हमारे पास ब्रांड की कलेक्शन है। जितने भी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इंशाल्लाह ताला आपको मुनासिब रेट पे मिलेंगे। सारिफीन ने बताया कि NMP कंपनी के पुराने कस्टमर्स हैं। उम्मीद है अद्वियात के साथ साथ ऑप्टिक्स में भी ऐसा ही मयार कायम रखेंगे। ग्लासेस हैं मुझे लगी हुई और मैं यूज़ करता रहता हूँ, मुख्तलिफ जगह से परचेज़ करता हूँ, पर यहाँ के मुझे जो रेट्स हैं वो बहुत अच्छे लगे और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इसी तरह अपना नाम बरकरार रखेंगे। हम इनकी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और अंडर वन अम्ब्रेला तमाम मेडिसिन अवेलेबल भी हो जाती हैं, विद गुड क्वालिटी अवेलेबल हैं। और एक यूनिक बात यह है कि इन्होंने NMP ने एक नया ऑप्टिकल सेटअप भी स्टार्ट किया है जिसमें मल्टीपल ग्लासेस अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट लेंस अवेलेबल हैं। NMP ऑप्टिक्स ने अपने सारिफीन की आंखों के मुआयने के लिए मशीन की सहूलत का भी एहतमाम किया, जिसे सारिफीन ने खूब सराहा। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से खसूसी तकरीब का इनका किया गया, जिसमें मेंबर नेशनल असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर वर्दा अशरफ और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत रुश्ता लोधी, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत माहिरीन तिब और तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब का मकसद अवाम में ज़हनी सेहत की आगाही बढ़ाना और बुरहानों के दौरान ज़हनी सुकून के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज करना था। मेंबर नेशनल असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है, ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत जितनी ही अहम है, हमें माशरती सतह पर भी ऐसे इक़दाम करने होंगे जिनसे हर फर्द को मदद तक आसान रसाई हासिल हो। सबसे पहले मुबारक हो मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब के आज एक सरकारी हस्पताल में मैं फिर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ये फीलिंग नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। इतना साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और लेटेस्ट मशीनें यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ के सारा माहौल है वो बदला हुआ है। मोहब्बत करें, मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे को समझें और जजमेंटल ना हो। जज करना अल्लाह का काम है, ये उस पर ही रहने दें और हम जो हकूक़ुल इबाद हैं और हमें बार बार उनका हुक्म आया है उसका समझें और लोगों को इस अजियत से बचाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद रुश्ता लोधी का कहना था कि माशरे को मस्बत सिमत में आगे बढ़ाने के लिए ज़हनी सेहत से जुड़े मनफी तासुर को खत्म करना और अवाम में इसकी अहमियत उजागर करना नागुज़ीर है। जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनकी जिम्मेदारियाँ मुझ पर हैं कि मैं उनकी ज़हनी सेहत का ख्याल करूँ, लेकिन इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी अगर कोई बीमारी ऐसी लाहक हो जाती है तो हमें मुआशरे से इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है कि ज़हनी सेहत के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक बहुत बुरी बात है या किसी बदनामी का बाइस है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना है कि कुदरती आफात, तनाज़ात और वबाओं के दौरान ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में फौरी ज़हनी मदद तक रसाई इंसानियत की बुनियादी ज़रूरत है। जब एक इलनेस मौजूद है तो उसका इलाज सुन्नत है और वो इलाज के लिए ये जगह है जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इनके पास आना, और इसको एक स्टिग्मा समझने की बजाय हमें हेल्प करनी चाहिए अपने पीयर्स को, टू हेल्प देम टू गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट। तकरीब में माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर आयशा रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर और प्रोफेसर डॉक्टर माजुबीन मसूद समेत फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए मरीजों को मिलने वाली इलाज मुआवजे की सहूलियात को सराहा, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन साकिब बट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। आलमी योम ज़हनी सेहत भरपूर तरीके से मनाया गया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर सोशल सिक्योरिटी के तहत आगाही वॉक का इनकाद हुआ। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में मुनक्किदा वॉक में डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोकर ने अस्पतालों में आगाही तकरीबात के इनकाद को सराहा। माहिरीन नफ्सियात ने ज़हनी सेहत, मुस्बत सोच और मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी पर मुफीद लेक्चर्स दिए।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا